Let us start solving the problem. सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना सीखते हैं इस सिचुएशन में. A गिविंग यू B, दिस इज पाथ 1, इसे हम पाथ 1 कह देते हैं. एंड A गिविंग यू C, इसे हम पाथ 2 कह देते हैं. हम कहते हैं किसी भी समय पर एट एनी टाइम द अमाउंट ऑफ A इज इक्वल टू n. अब मैं कहता हूं the decay of A through path 1, the decay of A through path 1 minus dn by dt 1. Minus dn by dt is the rate of change of A through path 1. Minus इसलिए क्योंकि path 1 से A कम हो रहा है. Now this is first order decay with decay constant lambda 1, hence this must be equal to lambda 1 n. एंड पाथ 1 से जो भी कुछ A डीके हो रहा है, इट्स गिविंग यू B, hence this is equal to dB by dt. मैं इसी तरह से दूसरी इक्वेशन पहले लिख देता हूं, फिर एक और बार समझाऊंगा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ A थ्रू पाथ 2, द रेट ऑफ चेंज ऑफ A थ्रू पाथ 2, once again this is also a first order decay with decay constant lambda 2, hence this is equal to lambda 2n. और पाथ 2 से A जो भी कुछ कम हो रहा है, that is giving you C, hence this is equal to dC by dt. Now these are the two important differential equation that can be written for this situation. सबसे पहले इन्हें लिखना सीखिए. The rate of change of A through path 1, that is dn by dt 1. Since A is decreasing through this path, hence it's negative. Since this is first order, hence lambda 1 n. Lambda 1 is decay constant and n to the power 1 since it's first order. और path 1 से जो भी कुछ A बन रहा है, that is giving you B, hence this is equal to dB by dt. और इसी तरह से path 2, dA by dt through path 2, which is dn by dt, the rate of change of A through path 2. पाथ 2 से भी A कम हो रहा है, hence माइनस साइन. इट्स फर्स्ट ऑर्डर विथ डीके कांस्टेंट लैम्डा 2, hence लैम्डा 2n. और पाथ 2 से जो भी कुछ A मिल रहा है, that is dC by dt. सबसे पहले इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखें और इसे लिखना सीखें. नाउ हम कहते हैं, एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट लिखता हूं जो हमेशा है, जब किसी क्वांटिटी का मल्टीपल पाथ से वेरिएशन हो रहा हो, तब हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी थ्रू वेरियस पाथ. जैसे A का पाथ 1 से वेरिएशन हो रहा है, पाथ 2 से भी वेरिएशन हो रहा है, तो मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख सकता हूं, dn by dt through path 1, the rate of change of A through path 1 plus the rate of change of A through path 2 is equal to the overall rate of change of A. This is a very important equation. A generalized equation इस प्रॉब्लम के लिए नहीं है, तो हमेशा ही होल्ड करेगी. The rate of change of A through path 1 plus rate of change of A through path 2 is equal to the overall rate of change of A. मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूं और लिखता हूं, rate of change of A through path 1 is minus of lambda 1n. Rate of change of A through path 2 is minus of lambda 2n. This is dn by dt. And I will finally write dn by dt is minus of lambda 1 plus lambda 2 into n. Now this equation concludes dn by dt equal to minus sign बाहर लिख लिया, lambda 1 plus lambda 2 into n. Now this equation concludes that the decay of A is yet a first order process. ये बिल्कुल वैसा कि वैसे ही है. dn by dt is minus of lambda n. lambda की जगह बस लिखा हुआ है lambda 1 plus lambda 2.
So decay of A is yet a first order process with lambda is equal to lambda 1 plus lambda 2. इस केस में lambda is equal to lambda 1 plus lambda 2. और हम यह बात लिख सकते हैं इसके लिए, इसे सॉल्व करना हमें ऑलरेडी आता है, dn by dt इक्वल टू माइनस ऑफ lambda n. इसे हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है और इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ lambda 1 प्लस lambda 2 इंटू t, और n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस lambda t. यह चीज लिखी जा सकती है. lambda इफेक्टिव इज lambda 1 प्लस lambda 2. अब इधर मैं यह बात भी लिख सकता हूं, T1 इफेक्टिव हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, T1 इज ln 2 by lambda 1, T2 is ln 2 by lambda 2. और जैसा हमने कहा है lambda इक्वल टू lambda 1 प्लस lambda 2, तो lambda 1 की जगह लिखता हूं मैं ln 2 by t इज इक्वल टू ln 2 by t1 प्लस ln 2 by t2. और इस तरीके से इफेक्टिव हाफ लाइफ 1 by t वुड बी गिवन बाय 1 by t1 प्लस 1 by t2. इसे नोट कर लेना चाहिए. अभी तक की बात जरा ध्यान से देखें, मैं इधर ए के लिए ग्राफ भी बना दूंगा. यहां तक मैंने बताया dn by dt थ्रो पाथ 1 प्लस dn by dt थ्रो पाथ 2 इक्वल टू dn by dt. dn by dt थ्रो पाथ 1 मैंने इधर से लिखा माइनस ऑफ lambda 1 n. dn by dt थ्रो पाथ 2 मैंने इधर से लिखा माइनस ऑफ lambda 2 n इज इक्वल टू dn by dt ओवरऑल. देन dn by dt इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ lambda 1 प्लस lambda 2 n. ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी की वैसी बन गई जैसे हमने लिखी थी, dn by dt इक्वल टू lambda n. और उधर से हमने कंक्लूड कर लिया वो फर्स्ट ऑर्डर डीके था, तो इधर से भी हमने कंक्लूड कर लिया डीके ऑफ ए इज येट अ फर्स्ट ऑर्डर. अभी भी डीके ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा. दो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस हो तब भी ओवरऑल ए का जो डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर ही होता है विथ इफेक्टिव डीके कांस्टेंट लैम्डा, दैट इज lambda 1 प्लस lambda 2. यह सबसे पहले हमने लिखा. यह एक इंपॉर्टेंट आंसर हो गया. और इसका सॉल्यूशन अब हमने इसको सॉल्व करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, थ्योरी में देख लीजिए इसके सॉल्यूशन का तरीका. n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ lambda 1 प्लस lambda 2 इनटू t. n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस lambda t. हम इधर ग्राफ बना सकते हैं, हम इधर ग्राफ बना सकते हैं a वर्सेस t के लिए. a हाउ इट वेरीज विद टाइम, इसके लिए ग्राफ बन जाएगा 0 टाइम पर n is n naught and it decreases like this, exponential decay इस तरह से होगा. n is equal to n naught e to the power minus of lambda 1 into plus lambda 2 into t, और n equal to n naught e to the power minus lambda t. और ये जो फर्स्ट प्रोसेस की हाफ लाइफ है t1, दिस ln 2 by lambda 1. दूसरे प्रोसेस की हाफ लाइफ है t2, दिस ln 2 by lambda 2. और अब हमने ये इक्वेशन रख दी, लैम्डा होगा ln 2 by t. t इज ओवरऑल हाफ लाइफ, क्योंकि अभी भी ये प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर ही है तो इसकी हाफ लाइफ t हुई. lambda 1 के ln 2 by t1, lambda 2 के ln 2 by t2, so 1 by t equal to 1 by t1 plus 1 by t2. t is overall half life. So this is the expression for overall half life and this is the
ग्राफ फॉर ए। सबसे पहले इन सारे कंसेप्ट को नोट करना चाहिए। अब मैं बी और सी के लिए कैसे कंक्लूड करेंगे यह बात बताऊंगा। पहले बड़े ध्यान से इस ग्राफ को भी देखिए। इस ग्राफ में आप एक बात देखिए, व्हेन t is 0 a is equal to n naught and when t approaches infinity a approaches 0 और यह ग्राफ है एक्सपोनेंशियल डीके। यह एक्सपोनेंशियल डीके जिसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा विच इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और जिसकी हाफ लाइफ है टी, where t is given by 1/t1 plus 1/t2। बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन करें। मैं बी और सी के लिए समझाऊंगा। यह लैम्डा इफेक्टिव और टी हाफ मैंने लिख दिया। नाउ आई विल टेल यू द मेथड टू ऑब्टेन बी एट एनी टाइम एंड सी एट एनी टाइम एंड बी एंड सी रेशियो, ये दोनों एक साथ बताऊंगा। ये एन के लिए जो एक्सप्रेशन है मैं इधर लिख देता हूं, एन नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी और एन नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ए। अब बी और सी के लिए जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन करूंगा, तरीका समझिए। मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करता हूं। दो तरीके से मैं बी और सी निकालने के तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जो लॉजिक बेस्ड है, मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं। माइनस डी एन बाई डी टी 1 डी एन बाई डी टी 2 इसको भूल जाओ। मैं यह जो यहां से यहां तक इक्वेशन और यहां से यहां तक इसे डिवाइड कर रहा हूं। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, एन और एन कैंसल्ड इज इक्वल टू डी बी बाय डी सी, डी टी डी टी कैंसल्ड। और इधर से मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर देता हूं, डी बी इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इंटू डी सी। और मैं इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। When b is 0, c is 0. When b is b, c is c. And this gives us b is equal to lambda 1 और lambda 2 constant है into c. और b by c at any time is lambda 1 upon lambda 2. This is b by c ratio at any time. किसी भी समय पर b बाय सी रेशो जो होगा दैट इज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इस रेशो में b और c हमेशा बनेंगे, हमेशा। अब b और c का यह रेशो बड़े ध्यान से देखिए किस तरह से ऑब्टेन करा गया है। मैंने इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करी, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, एन एन कट गया, db बाय डी सी हो गया, डी सी ऊपर ले गया, db इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 डी सी, दोनों को इंटीग्रेट करा। लैम्डा 1 लैम्डा 2 कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर रहा। लोअर लिमिट दोनों की 0, दोनों इनिशियली 0 हैं और दोनों किसी भी समय पर b is b and c is c। इंटीग्रल ऑफ db is b, इंटीग्रल ऑफ dc is c। सो b इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इंटू c। सो दिस इज b एंड c रेशियो। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। नाउ लेट मी टेल यू द मेथड टू ऑब्टेन व्हाट एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ b is and what exactly the amount of c is। इसके लिए मैं लॉजिक इस्तेमाल करूंगा। मैं कहता हूं इनिशियली हमारे पास a कितना है, n नॉट। इनिशियली हमारे पास a n नॉट है। कुछ समय के बाद a कितना बचा, n। कुछ समय के बाद a कितना डीके हुआ, n नॉट बाय n। द a decayed आफ्टर टाइम t। इनिशियली वी हैव गॉट a zero amount of a, after some time the amount of a remaining is 80। so this is the amount of a that decayed during time t and this is equal to b plus c। जो भी कुछ a डीके हुआ है वो b और c में कन्वर्ट हुआ है। this is the amount of a decayed। तो इनिशियली अमाउंट ऑफ a is n नॉट माइनस n is equal to b plus c। अब मैं n नॉट की जगह पर तो n नॉट ही लिखा रहने दूंगा, n की जगह पर n नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा t, b की जगह पर b और c की जगह पर मैं इधर से लिख देता हूं लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू b।
और अब मैं क्या करता हूं, एन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ लेमडा टी इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इंटू बी। और इसे रीअरेंज कर दिया जाए, यू विल गेट बी इज इक्वल टू लेमडा 1 एन नॉट अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बी। बी और सी दोनों के लिए एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जा सकता है। मैं इधर ही अब सी के लिए भी सिमिलरली एक्सप्रेशन लिख देता हूं। सी आफ्टर टाइम टी वुड बी lambda 2 n naught upon lambda 1 plus lambda 2 into 1 minus e to the power minus of lambda 1 plus lambda 2 into t. This is the amount of B and C. देखिए बी एंड सी रेशियो एट एनी टाइम इज लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। और खास बात, एट जीरो टाइम, टाइम टी इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यह टर्म 0 हो जाएगी, e टू पावर 0 1 हो जाएगा, और ये पूरा बी और सी दोनों 0 हो जाएंगे। मैं इसी चीज को, इसी आंसर को एक और तरीके से कंक्लूड कर सकता हूं। बी और सी निकालने का जो तरीका है मैं एक और तरीके से कंक्लूड करके दिखाता हूं। और उसे कंक्लूड करने के लिए आप इधर एक बात देखें, व्हेन t अप्रोचेस 0 e टू द पावर माइनस लेमडा t अप्रोचेस 1, b इज 0 एंड c इज ऑल्सो 0। ये बात आप देख सकेंगे। यही बी और सी कंक्लूड करने का एक और तरीका बताता हूं। ग्राफ बनाने से पहले, ग्राफ तो मैं बनाऊंगा ही, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट साफ कर देता हूं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, प्रॉब्लम मेरे दिमाग में पूरा अच्छी तरह से बैठा हुआ है। बी और सी का ग्राफ बनाऊं उसके पहले, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं बी और सी निकालने का एक और तरीका जो बता रहा हूं वो इस इक्वेशन से, पहले से नोट कर लीजिए। देखिए मैं लैम्डा 1 इक्वल टू डीवी बाई डी टी इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा और कहूंगा डीवी बाई डी टी तो ऐसा कैसे लिखा, इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन, और एन की जगह पर मैं इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, और मैं लिखता हूं dB इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी इंटू डी टी, और इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं। तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, टाइम t इक्वल टू 0 पर b इज 0, टाइम t इक्वल टू t पर b इज b। सो b इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी अपॉन माइनस ऑफ लैम्डा फ्रॉम 0 टू t, और इसे लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन लैम्डा इनटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ lambda t, which is once again same as this expression. lambda की जगह lambda 1 plus lambda 2 लिख देंगे, बस वही बात है। और c के लिए भी मैं इसी तरह से एक्सप्रेशन एक और बार लिख देता हूं। c is equal to lambda 2 n naught upon lambda into 1 minus e to the power minus of lambda t. This is the expression for C. प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, बड़े ध्यान से देखिए। ऑब्टेन करने के दो तरीके, एक तो लॉजिक से
जिसमें मैंने कहा इनिशियल ए माइनस रिमेनिंग ए, दिस इज द अमाउंट ऑफ ए दैट इज डीकेड एंड व्हाटएवर अमाउंट ऑफ ए इज डीकेड दैट इज आइदर कन्वर्टेड इनटू बी और सी. सो बी प्लस सी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ए डीकेड. और फिर मैंने एन नॉट लिखा और अमाउंट ऑफ ए रिमेनिंग, एन के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया, बी और सी के लिए यह रेशो से मैंने लिख दिया. और इस तरह से मुझको बी आ गया, और जब बी आया तो इसी तरह से मुझको सी भी आ गया. और दूसरा एक और बी निकालने का तरीका मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके माइनस जी एन बाई डी टी माइनस जी एन बाई डी टी वन इक्वल टू लेमडा वन एन इक्वल टू डी बाई डी टी. तो डी बाई डी टी इक्वल टू लेमडा वन एन, डी बाई डी टी इक्वल टू लेमडा वन एन, और एन की जगह मैंने एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी लिख दिया और डी टी ऊपर गया और इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया और यह आंसर. अब मैं बी और सी के लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा. बी और सी के लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं कुछ स्पेस, कुछ जगह बनाऊंगा. लेट अस से मैं इस चीज को पूरा पूरा साफ कर देता हूं. इसे लिख लीजिए प्लीज. मैं इसे साफ करके बी और सी के लिए ग्राफ बनाऊंगा. बाकी सब कुछ एक बार ध्यान से देख लीजिए. We need to plot for B and C. सबसे पहले लिमिट्स लगा के यह देख लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या सिचुएशन है और टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पर क्या सिचुएशन है. ग्राफ प्लॉट करने के लिए एट t इक्वल टू 0 e to the power minus lambda t approaches 1 or e to the power minus of lambda 1 plus lambda 2 into t approaches 1 or 1 minus e to the power minus lambda t. ये जो ब्रैकेट में चीज है दोनों ही केस में this thing approaches 0. So B also approaches 0, C also approaches 0. While at t equal to infinity, मैं इसे साफ कर देता हूं, t equal to infinity वाली कंडीशन भी लिखता हूं. At t equal to infinity, at when t approaches infinity, e to the power minus lambda t, this thing approaches 0, or e to the power minus of lambda 1 plus lambda 2 into t, this thing approaches 0, or 1 minus e to the power minus of lambda t, this thing approaches 1. So B approaches lambda 1 n naught upon lambda 1 plus lambda 2, and C approaches lambda 2 n naught upon lambda 1 plus lambda 2. बस यही लॉजिक रखूंगा ग्राफ बनाने के लिए. B वर्सेस C, B एंड C वर्सेस टाइम एक साथ बनाता हूं. इधर B और C. कलर चेंज कर देता हूं. 0 से B ऐसे बढ़ेगा और 0 से C ऐसे बढ़ेगा. This is B and this is C. This B is in fact infinite टाइम के बाद this lambda 1 n naught upon lambda 1 plus lambda 2, and this is B or C में इधर, and this is after infinite time, this is lambda 2 n naught upon lambda 1 plus lambda 2. This is the ratio of B and C. इन दोनों को ऐड करेंगे, that would be equal to n naught. This lambda 1 n naught upon lambda 1 plus lambda 2 and lambda 2 n naught upon lambda 1 plus lambda 2. This is equal to n naught. There is a graph for B
वर्सेस टाइम एंड सी वर्सेस टाइम। मैं चाहूं तो इनको अलग अलग भी बना सकता था, पर एक ही मैंने एक्सेस पे बना दिया। ए इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डीके, एंड दिस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब यह सारी चीज लिखने के बाद मैं पूरे प्रॉब्लम का फाइनल कंक्लूजन लिखता हूं एक ही बोर्ड में एक साथ। अब मैं ढेर सारे सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ प्रॉब्लम लिखूंगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखूंगा और उस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन लिखूंगा। पहले अब आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रॉब्लम को पूरी तरह से समराइज सिर्फ एक ही बोर्ड में करूंगा। तो ढेर सारी इक्वेशंस लिखकर कई बार ऐसा लगता है कि कंफ्यूज कर दिया। हमें तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट को मेमोराइज करना है, रटना है, आने पर सीधा सीधा अप्लाई करना है। डिराइव करना आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि फाइनल आंसर पता है और फाइनल कंक्लूजन को अप्लाई करने का तरीका पता है, वेल एंड गुड, आपको मार्क्स आएंगे। तो मैं अब इस पूरे प्रॉब्लम की समरी समझा देता हूं। पूरा बोर्ड को साफ करूंगा, प्रॉब्लम एक और बार लिखूंगा और सारे आंसर्स एक साथ लिख दूंगा। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट मी समराइज द कंप्लीट प्रॉब्लम। क्या मैंने सिचुएशन दी थी? ए गिविंग यू बी and A giving you C. These are the two parallel first order decay with decay constant lambda 1 and lambda 2, half life T1 and T2. Two parallel. We may have not two parallel, in fact we may have n parallel first order decay. मैं तो अब n parallel first order decay के लिए इसको जनरलाइज कर देता हूं। इस तरह से मैं तीसरा और चौथा मल्टीपल, दिस इज लैम्डा 3 T3, दिस इज लैम्डा 4 एंड T4। हम कहते हैं n पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके। Initially A is finite, A naught, and all these things are 0. This is G, A, B, C, D, E, F. Initially, A is N naught. अब हम कहेंगे पहली बात, decay of A would remain first order. Decay of A remain first order, where decay constant lambda would be lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 up to lambda n, and half life would be given by 1 by t equal to 1 by t1 plus 1 by t2 plus 1 by t3 and so on up to 1 by tn. A at any time, जिसे हम n लिख सकते हैं, would be equal to n naught into e to the power minus of lambda t, or this would be equal to n naught into e to the power minus of lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 and so on up to lambda n into t. This would be A. And the ratio of B is to C is to D is to E. This would be equal to lambda 1 is to lambda 2 is to lambda 3 is to lambda 4. ये हमेशा इसी रेशो में होंगे। And we will say that this B would be equal to lambda 1 n naught upon lambda whole into 1 minus e to the power minus of lambda t. C would be equal to lambda 2 n naught upon lambda 1 into e to the power
माइनस लेमडा टी। हम यह सारी बातें लिख सकते हैं। मैंने n पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके के लिए कहा, इनिशियली ए इज नॉट बी सी डी ऑल दिस आर जीरो, तो हम कहेंगे डीके ऑफ ए रिमेन फर्स्ट ऑर्डर, डीके ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, वेयर इफेक्टिव डीके कांस्टेंट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, सारे डीके कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। इफेक्टिव हाफ लाइफ वुड बी गिवन बाय 1/t इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3 एंड सो ऑन। A at any time is n naught e to the power minus lambda t. Here lambda is effective decay constant, or n naught e to the power minus of lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 up to into lambda t. B C D इन सब का रेशियो बिल्कुल वही होगा, lambda 1 is to lambda 2 is to lambda 3 is to lambda 4 and so on. B और C की यह वैल्यू होगी। इसी तरह से हम D B C D यह लिख सकते हैं, D is lambda 3 n naught upon lambda into 1 minus e to the power minus of lambda t and so on. A का डीके फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा। A का डीके प्रोसेस यदि हम देखें तो A वर्सेस टाइम वह इस तरीके से कम होता हुआ दिखेगा, एक्सपोनेंशियल डीके। और B वर्सेस टाइम, C वर्सेस टाइम यदि हम प्लॉट करें, B वर्सेस टाइम यदि हम प्लॉट करें तो वह इस तरह से ग्रो होता हुआ दिखेगा, where this is lambda 1 n naught upon lambda, यह B वर्सेस टाइम होगा। इसी तरह से C वर्सेस टाइम और D वर्सेस टाइम प्लॉट करा जा सकता है। दिस इज द होल समरी ऑफ द सिचुएशन, इस पूरे सिचुएशन की। यही चीज हमने केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी सीखी है। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके हम कहते हैं इसको। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा सीरीज डीके, सीरीज फर्स्ट ऑर्डर डीके, दो केसेस उसके भी समझाऊंगा। पहले इसे नोट डाउन पूरा कर लीजिए, दिमाग में इसको बैठा लीजिए, प्रॉब्लम आने पर सीधा सीधा अप्लाई करना है। जनरली आपसे ऐसी सिचुएशन में हमेशा टू पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके देंगे और पूछेंगे व्हाट इज बी एंड सी रेशो, बी बाय सी रेशो पूछेंगे हमेशा। और बी बाय सी रेशो जब भी पूछा जाएगा, जनरली दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, बी बाय सी रेशो जो आपको बता देना है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अधिकतर ऑब्जेक्टिव में यही सवाल पूछा जाता है। टू पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके दे दिए जाते हैं और प्रोडक्ट का रेशियो किसी भी समय पर पूछा जाता है, बी एंड सी देयर रेशियो इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। बस याद रखिए।